Hello student. In the last lecture we have studied about the different types of network. Now in this lecture we are going to study the logical classification of network. So we have already seen the different types of network, in that what is LAN, MAN and WAN, and what is the difference between LAN and MAN. So that questions can be asked in exam. So the question may ask, write the difference between LAN and MAN for 4 marks. Most of time it is asked, write a short note on LAN or MAN or WAN for 4 marks, characteristics, advantages and disadvantage. So that types of network is important. Now in the today's lecture we are going to study about the logical classification of network. Okay, so in this we will study which are the different classification of network, that is what is peer-to-peer network, what is client server network, that we are going to study in this lecture. So let's start with logical classification of network. The first is peer-to-peer network. Okay, now what is in peer-to-peer network? Peer-to-peer network means the network which does not have any dedicated server. Here the number of workstations are connected together for a purpose of sharing information or devices. All the workstations are considered as equal. Any one computer can act as client or server at any instance. This network is ideal for small network where there is no need of dedicated servers, like home network or small business establishment or the shop. Typically, a work group contains less than 10 workstations. Normal workstation operating systems are Windows 95-98, ME, XP, NT workstation, etc. So now what we are going to study is we are going to study what is peer-to-peer network. Okay, so what is basically peer-to-peer network? Peer-to-peer network means a network, ऐसा नेटवर्क कि उसको सर्वर की नेसेसरी नहीं है. ओके, जिसको डेडिकेटेड सर्वर्स नहीं लगते, दैट इज़ वो जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी तो वो क्या होगा कि जो भी कनेक्टेड पीसेस रहेंगे उनके थ्रू, या फिर जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस है उनके थ्रू ही वो क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे. तो ये वर्क स्टेशन, इसमें क्या होता है कि जो जितने भी वर्क स्टेशन क्रिएट किए हैं वर्क ग्रुप्स के, तो वो उनमें वो इक्वली डिवाइड किया जाता है. एंड दैट इज़ ये जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है, ये स्मॉल वो इसके लिए यूज़ किया जाता है. इसमें कोई सर्वर नहीं रहता है. तो इसमें क्या होता है कि एट अ टाइम जो भी एक कंप्यूटर है वो क्लाइंट भी वर्क करता है और सर्वर भी वर्क कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड. क्योंकि ये पीयर टू पीयर नेटवर्क मोस्टली स्मॉल बिजनेसमैन या स्मॉल ग्रुप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे मोस्टली लेस देन 10 कंप्यूटर्स या लेस देन 10 वर्क स्टेशंस को कंबाइन टुगेदर किया जाता है. तो मोस्टली ये नॉर्मल फंक्शनिंग विंडोज़ एक्सपी है, विंडोज़ 95-98 है, ये इनके साथ ये यूज़ किया जाता है. So this is what about peer-to-peer network. Peer-to-peer network means each computer can act as a server or as a client at that particular instance. It is not necessary that there should be a server for every client PC, because in this the workstation is having the computers of less than 10. Okay. सेकेंड है क्लाइंट सर्वर. अभी क्लाइंट सर्वर इसमें क्या होता है कि जो हाई एंड के सर्वर्स रहते हैं, जिसमें कंटिन्यूसली क्लाइंट को जो भी डेटा या जो भी सर्विस राइट की है वो नेटवर्क पे प्रोवाइड करती है अपॉन द रिक्वेस्ट विच ही इज़ गेटिंग. ओके, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट जो भी उसको मिलती है उसके हिसाब से वो क्या करती है, कंटिन्यूसली उसका जो भी रहता है वो क्या करती है, नेटवर्क के ऊपर सर्व करती है. द क्लाइंट सर्वर मॉडल्स कंसिस्ट ऑफ हाई एंड सर्वर सर्विंग क्लाइंट्स कंटिन्यूसली on a network by providing them with specific services upon request. So this is what about client server. In this way we have seen what is the logical classification of network. Now moving forward we will see what are the different network components. So there are different network components which are used in a computer networks. The first component is hub.
Now we have seen already in LAN MAN WAN, that is for connection between the devices, or we use different types of components, that is hubs, switches, routers, repeaters, modem. So what is now hub, what is modem, that we are going to study in detail. Now first, hub. A hub works in the physical layer of the OSI model. It is basically a non-intelligent device and has no decision making capability. What a hub basically does, it takes the input data from one of the port and broadcasts the information to all other ports connected to the network. Network hub uses the Ethernet connections to link the computers together, also known as the Ethernet hub. Hub refers to the hardware device that enables multiple devices to be connected on a computer. Now mostly hub is used where, hub कहाँ पे यूज़ किया जाता है, मोस्टली हब OSI मॉडल के फिजिकल लेयर में यूज़ किया जाता है. OSI मॉडल ये क्या है कि इसमें 7 लेयर्स रहते हैं. ईच लेयर नेटवर्क का ये एक इम्पोर्टेंट मॉडल है, OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल. ये दो मॉडल है जो हमें फर्दर हायर एजुकेशन में स्टडी करने हैं, जो नेटवर्क में यूज़ किए जाते हैं. दैट इज़ OSI रेफरेंस मॉडल एंड TCP/IP मॉडल. तो ये OSI रेफरेंस मॉडल टोटल 7 लेयर्स के रहते हैं. तो उसकी जो बेसिक लेयर रहती है, दैट इज़ फर्स्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल इज़ ऑफ फिजिकल लेयर. तो वो फिजिकल लेयर में OSI मॉडल के क्या है, तुम्हारा हब. तो हब कहाँ पे वर्क करता है, तो फिजिकल लेयर के इसमें आपके OSI मॉडल में. तो बेसिकली ये हब क्या है कि ये हब ये नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है. इसे नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके पास कुछ डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी नहीं रहती है. अभी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बेसिकली क्या रहता है, क्या वो कौन से भी इसमें जो भी डेटा हम बेसिकली इनपुट कर रहे हैं वो एक पोर्ट के पास से लेता है और वो दूसरी जगह वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करने में हेल्प करता है. दैट इज़ वो हेल्प करता है कि बाकी के जो भी पोर्ट्स वो नेटवर्क में कनेक्ट किए हुए होंगे उनमें जो भी इनपुट डेटा हमने लिया है वो ब्रॉडकास्ट करें. दिस इज़ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हब. उसके बाद नेटवर्क में कुछ हब ऐसे भी रहते हैं कि जिन्हें इथरनेट का कनेक्शन लगता है. इथरनेट कनेक्शन यूज़ करके अगर कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया रहेगा तो दैट हब इज़ कॉल्ड एज इथरनेट हब. ओके. नेटवर्क हब में अगर आप इथरनेट का यूज़ करके कुछ भी इथरनेट का हब यूज़ करके अगर आप लिंक कर रहे हो कंप्यूटर्स को, तो उसमें क्या उसे क्या बोला जाता है, इथरनेट हब. तो मोस्टली हब मतलब क्या रहता है कि हब एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स या फिर मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ हमें क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करने में हेल्प करता है. सो व्हाट इज़ हब बेसिकली, इट इज़ अ hardware device which enables multiple devices to be connected together on a computer. So this is what hub is. Okay. USB hubs allows dozen of USB devices to be connected to one computer, even though that computer may have few USB connection. There are 3 types of network hub: passive hub, active hub and intelligent hub. There are 3 words. A passive hub makes all the data packets available to other devices through the hub connected to the hub. A manageable hub allows monitoring of data and configuration of individual ports. An intelligent hub monitors data packets and sends them to the correct port. सो इन USB में और भी क्या किया जाता है, तो USB में क्या किया जाता है कि USB डिवाइसेस जो रहती है एट अ टाइम डजन्स ऑफ USB डिवाइसेस आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो एक कंप्यूटर को. वन कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड विथ मिनिमम 12 USB डिवाइसेस. तो ये USB डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क का हब है, नेटवर्क हब इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप. द फर्स्ट इज द पैसिव हब. पैसिव हब में क्या किया जाता है, तो पैसिव हब में क्या किया जाता है, जो भी डेटा पैकेट्स अवेलेबल है हमारे पास वो डेटा पैकेट्स हम क्या करते हैं कि अदर डिवाइस जो भी कनेक्टेड है उसके हब के साथ हम क्या करते हैं, उसे यूज़ करते हैं. पैसिव हब्स मेक ऑल द डेटा पैकेट्स अवेलेबल टू ऑल अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ हब.
तो जितने भी डिवाइसेस वो पर्टिकुलर हब को कनेक्टेड रहेंगे तो वो डिवाइस को क्या करता है, डेटा पैकेट्स अवेलेबल करके देने का काम कौन करता है, तुम्हारा पैसिव हब। whereas manageable hub allows monitoring of data and configuration of individual port। मैनेजेबल हब क्या करता है कि वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली तुम्हारा जो भी डेटा रहता है वो मॉनिटर किया जाता है और मॉनिटर करके उसको इंडिविजुअल पोर्ट को वो कॉन्फ़िगर करने का काम किसके पास रहता है, मैनेजेबल हब को। मैनेजेबल हब क्या करता है कि डेटा को मॉनिटर करता है और इंडिविजुअल पोर्ट को कॉन्फ़िगर करता है। दिस इज व्हाट इज डन बाय मैनेजेबल पोर्ट। An intelligent hub monitors data packets and send them to the correct port। इंटेलिजेंट हब का काम क्या रहता है फिर, व्हाट डज द इंटेलिजेंट हब डू, तो वो क्या करता है कि कंटिन्यूसली डेटा मॉनिटर करता है डेटा पैकेट्स से। हब क्या करता है कि डेटा पैकेट्स को मॉनिटर करता है और करेक्ट पोर्ट कौन सा है वहाँ पे वो डेटा क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है बाय यूजिंग द इंटेलिजेंट हब। सो there are three types of hubs which are used, that is passive hub, manageable hub and intelligent hub। Now next, what are the advantages of hub? hub के advantages क्या है, तो first most advantage of hub है कि no need of configuration। hub को configuration करने की ज़रूरत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसका परफॉर्मेंस इतना फास्ट रहता है कि उसको कोई भी प्रोसेसिंग की जाती है तो वो प्रोसेसिंग एट हब ही होती है। ओके, दैट इज द प्रोसेसिंग स्पीड उसका इतना रहता है कि जो भी आप डिफरेंट प्रोसेसेस उसके ऊपर करोगे वो हर एक प्रोसेस किसके ऊपर होती है, तुम्हारे हब के ऊपर होती है। तो एक्टिव हब क्या किया जाता है, मोस्टली एक्टिव हब में मैक्सिमम टाइम्स जो भी नेटवर्क का डिस्टेंस है वो हमें अगर इंक्रीज करना होगा, मैक्सिमम नेटवर्क क्रिएट करना होगा, तो एट दैट टाइम हम कौन सा यूज़ करते हैं, एक्टिव हब। सो दिस आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ हब्स। Now next is the disadvantage of hub। The first disadvantage of hub is कि using passive hub limits the maximum media distance and cannot filter traffic। तो हब का डिसएडवांटेज क्या है कि जो भी डेटा आ रहा है तो वहाँ पे क्या होता है कि एट अ टाइम नंबर ऑफ यूजर्स सेंड कर रहे हैं डेटा, तो वहाँ पे क्या होता है कि डेटा सेंड होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो वो इन फॉर्म ऑफ पैकेट सेंड किए जाते हैं। सो जब पैकेट्स ट्रैवल कर रहे हैं ओवर द नेटवर्क, एट दैट टाइम वहाँ पे क्या होता है कि ट्रैफिक जनरेट होती है, तो वो ट्रैफिक ये फिल्टर नहीं कर सकते। ट्रैफिक मीन्स इसका डेटा, फर्स्ट डेटा सेकंड डेटा, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, ट्रैफिक क्रिएट होती है, तो वो फिल्टर नहीं कर सकते। और सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि पैसिव हब अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो जो भी मीडिया का डिस्टेंस है वो हम मैक्सिमम नहीं कर सकते। ओके, तो उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस आते हैं मीडिया के डिस्टेंस पे अगर हम पैसिव हब यूज कर रहे हैं। सेकेंड इज ब्रिजेस। नाउ व्हाट इज ब्रिज? सो अ ब्रिज ये भी एक डिवाइस है जो किस में यूज वर्कआउट किया जाता है, डेटा लिंक लेयर में यूज किया जाता है। ना डेटा लिंक लेयर ये क्या है, तो डेटा लिंक लेयर ये OSI मॉडल की सेकेंड लेयर है जिसमें क्या किया जाता है, जो भी फिजिकल लेयर से डेटा दिया जाता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स मैक एड्रेस या फिर उसका कंप्यूटर रीडेबल में करके वो थर्ड लेयर को सेंड किया जाता है, दैट इज नेटवर्क लेयर में वो शेयर किया जाता है। तो ब्रिजेस से कौन से इस ब्रिज ये डिवाइस किस में वर्क किया जाता है, तो तुम्हारे डेटा लिंक लेयर में, OSI मॉडल का सेकेंड लेयर में वो यूज़ किया जाता है। बट वो क्या है कि मोस्टली वो बहुत प्रिमिटिव है एज कम्पेयर टू स्विच। ये स्विच के कंपैरिजन में बहुत प्रिमिटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, ओनली 2 लाइन्स यूज़ की जाती है। ओके, ब्रिज पहले जो यूज़ किया जाता था ब्रिज, तो उसमें कनेक्शन कितना होता था, सिर्फ 2 लाइन्स यूज़ की जाती थी। पर अभी जो रिसेंट ब्रिज क्रिएट किए गए तो उसकी जो ऑपरेशंस है वो ऑपरेशन सेम एज स्विच की जो ऑपरेशन है सेम उसके जैसे इसके ऑपरेशंस किए गए जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसके। फिर ये जो ब्रिज है ये किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के प्रिंसिपल पे ये वर्कआउट करता है बाय यूजिंग द मैक एड्रेस। और वो क्या यूज़ करता है, उसका मैक एड्रेस यूज़ करता है पोर्ट्स का फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन।
ओके, एक once the bridge is associated to port and address, it will send traffic to that address and port only. एक बार क्या होता है कि अगर ब्रिज को एसोसिएट किया है पर्टिकुलर पोर्ट और एड्रेस, तो वो क्या किया जाता है कि जो भी ट्रैफिक आई है तो वो ट्रैफिक को वो पोर्ट क्या करता है, एड्रेस कर देता है. सो दिस इज व्हाट द ब्रिज इज. ओके, बेसिकली ब्रिजेस आर अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. जैसे हब के 3 टाइप्स थे, वैसे ब्रिजेस के भी 3 बेसिक टाइप्स है. फर्स्ट है लोकल ब्रिज, सेकेंड है रिमोट ब्रिज एंड थर्ड इज वायरलेस ब्रिज. ऐसे 3 टाइप्स ऑफ ब्रिज है. तो लोकल ब्रिज क्या रहता है कि लोकल ब्रिज इज अ ब्रिज दैट डायरेक्टली कनेक्ट्स टू द लैंड. तो डायरेक्ट कनेक्शन टू द लैंड अगर करना होगा, डायरेक्टली कनेक्शन ऑफ लैंड होता है, किस में होता है, तुम्हारे लोकल ब्रिज में. तो लोकल ब्रिज गेट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर लैंड. वेराज रिमोट ब्रिज क्या कहाँ यूज किया जाता है, जब तुम्हें वैन क्रिएट करना होगा. वैन नेटवर्क जब तुम क्रिएट कर रहे हो तब आप कौन सा ब्रिज यूज करते हो, तो रिमोट ब्रिज यूज करते हो. ओके, एंड वायरलेस ब्रिज कब यूज करते हो, जब व्हेन यू वांट टू जॉइन एनी लैंड. अगर आपको लैंड ज्वाइन करनी होगी तो उसके लिए आप कौन सा ब्रिज यूज कर सकते हो, वायरलेस ब्रिज यूज कर सकते हो. Now next is the advantages of bridges. Now next advantages of bridges में क्या है कि फर्स्ट एडवांटेज है कि सेल्फ कॉन्फिगरिंग. सेल्फ कॉन्फिगरिंग मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा किया जाता है उसमें, तो वो खुद के खुद वो डेटा कॉन्फ़िगर कर सकता है. क्योंकि ब्रिजेस जो है वो इनएक्सपेंसिव रहते हैं. तो उसमें क्या किया जाता है कि जो भी डोमेन है उसकी साइज हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. एंड इसमें जो प्रोटोकॉल्स यूज किए गए ना, व्हाट इज प्रोटोकॉल्स, मैंने लास्टली एक्सप्लेन किया था, रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो इसमें क्या किया जाता है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है बिटवीन द मैक लेयर्स. मैक लेयर्स में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है. और परफॉर्मेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ एनी परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस का इंफॉर्मेशन देके उसको एक्सेस कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, ये काम भी किसके पास रहता है, तुम्हारे ब्रिजेस के पास. ओके, डिसएडवांटेज क्या है कि इसका कुछ स्कोप डिफाइन नहीं रहता है कि ये कितना ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, इसके ऊपर कुछ भी लिमिटेशंस नहीं है. सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि उसमें अगर एक्सट्रीमली लार्ज नेटवर्क रहेगा तो उसके ऊपर कुछ भी स्केलिंग ऑफ डेटा नहीं किया गया है. It does not scale any extreme data or any type of large network. लार्ज नेटवर्क को भी वो क्या नहीं कर पाता है, स्केल नहीं कर पाता है. क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ फॉरवर्ड डिलेज और स्टोर डिलेज जो भी रहेगा वही बफर किया जाता है. बाकी डेटा बफरिंग नहीं होता है. सिर्फ डेटा विच इज बफर्ड इज अबाउट द फॉरवर्ड डिलेज एंड द स्टोर डिलेज. तो इसमें डिफरेंट मैक प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं. बाय यूजिंग द डिफरेंट मैक प्रोटोकॉल्स उसमें एरर्स का इंट्रोडक्शन किया जाता है. तो वो जो एरर्स रहती है वो हम रिमूव कर सकते, ब्रिजेस की इसमें हम रिमूव नहीं कर सकते. और ब्रिजेस एज कम्पेयर टू रिपीटर्स, ब्रिजेस से क्या है, कॉस्टलियर है. सो दिस आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रिजेस. नाउ थर्ड इज स्विच. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ स्विच. स्विच कहाँ पे यूज किया जाता है, तो स्विच इट इज अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स एंड फिल्टर्स OSI लेयर टू डेटाग्राम्स बिटवीन पोर्ट बेस्ड ऑन मैक एड्रेस. तो ये स्विच कहाँ पे यूज किया जाता है कि जो भी डेटा हमें फॉरवर्ड करना है फ्रॉम डेटा लिंक लेयर, तो उसके बीच में क्या यूज किया जाता है, ये स्विच यूज किया जाता है. तो स्विच क्या करता है कि डेटा को फॉरवर्ड करता है, एट द सेम टाइम डेटा को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ OSI मॉडल. तो ये OSI मॉडल कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो डिफरेंट जो पोर्ट्स रहते हैं हमारे मैक एड्रेस के ऊपर बेस्ड, उसके इसमें क्या यूज़ किया जाता है, ये स्विच यूज़ किया जाता है. इट मीन्स स्विच ये क्या रहता है कि इसके पास जो भी डेटा आता है वो सिर्फ फॉरवर्ड किया जाता है फ्रेम्स को. इसमें कौन सा भी पोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है कम्युनिकेशन में. ओके, इट मीन्स कि इसमें क्या किया जाता है कि स्विच में क्या किया जाता है, जो भी डेटा रहता है वो फॉरवर्ड किया जाता है फ्रेम्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम्स विच आर अटैच्ड टू आवर पोर्ट्स. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम वो क्या करता है कि इन्वॉल्व करता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो उसमें, और वहाँ पे सब पोर्ट्स वो क्या करता है, कनेक्ट करता है. तो इसमें स्विच का और एक मेन वर्क क्या रहता है कि वो क्या करता है कि जो भी डिसीजन रहता है
फ्रेम का जो भी डिसीजन आता है तो वो उसको फॉरवर्ड करता है ऑन द बेसिस ऑफ द मैक एड्रेस। मैक एड्रेस ये यूनिक एड्रेस रहता है, जैसे आईपी एड्रेस रहता है। तो मैक एड्रेस के बेस पे वो क्या करता है कि उनका जो भी डिसीजन रहेगा फ्रेम का वो आगे फॉरवर्ड किया जाता है। A switch normally has numerous ports facilitating a stack topology for devices and cascading additional switches। तो बेसिकली नॉर्मली जो स्विच यूज़ किया जाता है तो वो स्विच को नंबर ऑफ पोर्ट्स रहते हैं। तो ये नंबर ऑफ पोर्ट्स किस में यूज़ किया जाता है, तो ये स्टार टोपोलॉजी शो की जाती है। नेटवर्किंग में नंबर ऑफ टोपोलॉजीज यूज़ की जाती है डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर्स। स्टार टोपोलॉजी रहती है, बस रहती है, मैश है, हाइब्रिड है। तो ये हम आगे स्टडी करेंगे कि व्हाट इज टोपोलॉजी। पर याद रखो स्टार टोपोलॉजी मतलब क्या, कंप्यूटर्स कौन से मैनर में कनेक्ट रहते हैं, स्टार फैशन में कनेक्ट रहते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, तो जो भी स्विच यूज़ किया जाता है तो उसके पास न्यूमरस पोर्ट्स रहते हैं। तो ईच पोर्ट्स का यूज़ कैसे रहता है, एज अ एडिशनल स्विच। वो कैसे यूज़ किया जाता है, एज एन एडिशनल स्विच यूज़ किया जाता है। कुछ स्विच ऐसे रहते हैं कि जिसके ऊपर राउटिंग बेस जिसके ऊपर कैपेबिलिटी रहती है कि वो लेयर थ्री दैट इज द नेटवर्क लेयर ऑफ द OSI मॉडल एज वेल एज सम ऑफ द एडिशनल लेवल्स, उनके साथ वो कंबाइन करके मल्टी लेयर स्विचेस क्रिएट करने की भी उसमें क्या रहती है, कैपेबिलिटी रहती है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द स्विच। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, ये देखो यहाँ पे ये डायग्रामेटिक में शो किया गया है, दिस इज स्विच। और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है, सर्वर है, प्रिंटर है, मॉडेम है। तो ये स्विच के हर एक पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज नेटवर्क स्विच, वेर एज फॉर दैट नेटवर्क स्विच वी कैन कनेक्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, सर्वर्स, मॉडेम्स एंड प्रिंटर, एनी हार्डवेयर डिवाइस ऑल्सो यू कैन कनेक्ट ओवर हियर। तो बेसिकली ये किसके लिए यूज किया जाता है, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट इज राउटर्स। नाउ व्हाट इज द राउटर, व्हाट इज द यूज ऑफ राउटर। So mostly router is used for an internet working device. It works as an internet working device. उसका काम क्या रहता है कि जो भी फॉरवर्डेड पैकेट आया है वो उसकी इंफॉर्मेशन जो भी है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है। वो पैकेट में जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी दैट इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोसेस्ड बाय द by routers. So it is an internet working device that forwards packet between networks by processing information found in the packet. This information is processed in conjunction with the routing table. Routers use the routing table to determine which interface to forward the packet. This can include null, also called as black hole interface, because data can go into it and no further processing is done. तो इसमें क्या किया जाता है कि वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस की जाती है। तो जो भी इंफॉर्मेशन वो प्रोसेस करनी है तो वो प्रोसेस कैसे की जाती है, बाय यूजिंग राउटिंग टेबल। अभी राउटिंग टेबल ये मोस्टली राउटर्स में यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, तो उसमें उनको समझ में आता है कि कौन सा इंटरफेस है कि जिसको मुझे पैकेट फॉरवर्ड करना है। ओके कभी कभी ऐसा होता है कि वो एम्प्टी रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक होल इंटरफेस। ब्लैक होल इंटरफेस या फिर नल इंटरफेस भी कहा जाता है, जिसके ऊपर हमें कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी। तो ये सब आइडेंटिफिकेशन करने का काम किसके पास रहता है, हमारा राउटर के पास रहता है। सी दिस इज हाउ द राउटर वर्क्स। यहाँ पे the number of PCs and server are connected to each other by using the routers. See, this is called as the diagrammatic picture of router, how router is used. Okay, now next is what are the advantages of router. The first advantage of router is it is used to interconnect the network. Router is mostly used for interconnecting of network. इट इज़ ऑल्सो यूज एक तो इंटरकनेक्ट ऑफ नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो कनेक्टिविटी वैन के लिंक्स थ्रू हमें चाहिए उसमें भी वो वैन के लिंक्स थ्रू वो कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करने का काम भी किया जाता है। उसके बाद नंबर ऑफ मल्टीपल स्लॉट्स राउटर्स में किए जाते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स यूज़ की जाती है फॉर अदर डिवाइसेस। दूसरे डिवाइसेस को नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स यूज़ की जाती है, मतलब वो मल्टीपोर्ट डिवाइस के जैसे भी हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज है कि इट प्रोवाइड्स अस द फुल नेटवर्क।
ओके उसमें फुल नेटवर्क रहते हैं बाय थ्रू द रिडंडेंट कंपोनेंट, जो भी रिडंडेंसी उसमें ऑकर हुई रहेगी, मल्टीपल कॉपीज ऑकर हुई होगी, उसके बेस के ऊपर किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि इट इज़ ऑल्सो राउटर्स के ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, राउटर्स की दो या दो से ज़्यादा जो भी नेटवर्क रहेंगे वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट रहने के लिए भी हम क्या करते हैं, राउटर्स का यूज़ करते हैं। ओके सो दिस आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राउटर। डिसएडवांटेज ऑफ राउटर, एक ही डिसएडवांटेज है कि उसका जो ऑपरेशन का स्पीड है वो बहुत स्लो है एज कम्पेयर टू एनी अदर डिवाइसेस। हाँ, बाकी के डिवाइसेस के कंपैरिजन में इसका जो प्रोसेसिंग है वो स्लो है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी क्या की गई है, इन्वॉल्व की गई है। सो इसका परफॉर्मेंस स्लो है एज कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि उन्हें एबिलिटी नहीं है कि वो उनका जो भी है, दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू स्टॉप द ब्रॉडकास्ट पैकेट्स फ्रॉम बीइंग फॉरवर्डेड टू अदर नेटवर्क। तो सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं कि जो पैकेट्स उन्होंने ब्रॉडकास्ट किए तो उसको उन्होंने ये करना है कि उसको फॉरवर्ड नहीं होना देना है टू अदर नेटवर्क, उनको वापस स्टॉप करना है। तो ये उनके पास ये ब्रॉडकास्ट पैकेट्स को स्टॉप करने की एबिलिटी नहीं है। सो दिस आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस। नाउ नेक्स्ट इज मॉडेम। नाउ व्हाट इज मॉडेम? मॉडेम मतलब क्या है कि मॉडेम इज इन शॉर्ट मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का शॉर्ट फॉर्म दोनों के शॉर्ट फॉर्म्स क्रिएट करके कौन सा क्रिएट किया गया कंपोनेंट, दैट इज मॉडेम। तो मॉडेम ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आपका डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा या फिर आपका एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा। सो वो एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग वाइस वर्सा कैसे भी करो तो दैट इज कॉल्ड एज मॉडेम। तो ये मॉडेम कैसे क्रिएट किया जाता है? बाय मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन मतलब क्या, डीमॉड्यूलेशन मतलब क्या? डिजिटल सिग्नल मतलब ऐसे सिग्नल जो 0 एंड 1 वैल्यू शो करता है, 0 एंड 1, ओके, इन बिटवीन कौन सी भी वैल्यू नहीं रहती। और एनालॉग मतलब क्या? कंटिन्यूस वेव के फॉर्म में डेटा ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर डिजिटल सिग्नल का कन्वर्जन एनालॉग सिग्नल में करना है देन इट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में क्या किया जाता है, जो डिजिटल है उसका कन्वर्जन एनालॉग में किया जाता है। वेरस डीमॉड्यूलेशन मतलब क्या, जो एनालॉग सिग्नल है उसका कन्वर्जन डिजिटल सिग्नल में करना है, तो दैट इज कॉल्ड एज डीमॉड्यूलेशन। समझ में? मॉड्यूलेशन मतलब क्या, डीमॉड्यूलेशन मतलब क्या। तो मोस्टली कंप्यूटर्स क्या करते हैं, जब उनका डेटा वो ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि टेलीफोन की लाइंस यूज़ करते हैं। तो वो क्या किया जाता है, उसमें बाई डायरेक्शनल डिवाइस यूज़ किया जाता है जिसमें आपका एनालॉग डेटा डिजिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है और वो फर्दर डेटा रिसिप्शन के लिए यूज़ किया जाता है और फिर से उसका कन्वर्जन वो बैक टू डिजिटल टू एनालॉग बैक भी कर सकता है। सो दिस इज व्हाट अबाउट मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, दैट इज मॉडेम। ओके, so in this way we have seen some of the components. Remaining we will see it in the next lecture. Thank you.